रहती है और रक्षान ने मुझे एटलीस्ट 3 बार बोला होगा कि रविशा इस बार थोड़ा हिंदी बोलना। आपकी हिंदी पहले से तो बहुत बेटर हो गई है, तो आप हिंदी में ही चर्चा करना, थोड़ा इंग्लिश आप कम बोलना। तो मैं बहुत मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम हिंदी बोलूं। I mean English बोलूं. So I welcome all of you to another edition of Envisioning the Future at Pari Bazaar. We have a very stellar panelist here, Dr. Pooja Saxena. She's an archaeologist, and who would know better the heritage of Bhopal than her? I am going to read out her introduction to you. Thank you, Pooja, for accepting our invitation. It's an honor to have you with us. Dr. Pooja Saxena is a distinguished archaeologist with over 23 years of expertise in archaeological conservation and interpretation. Her illustrious career includes receiving 5 prestigious fellowships, including renowned UK visiting fellowship. Dr. Saxena has made significant scholarly contributions, publishing more than 50 research papers in the field of history, art and architecture. That really deserves a round of applause. 50 papers, wow. A passionate advocate for Gond art. I would like to emphasize here Gond art because our theme here for Pari Bazaar this year is Gond. So it's so apt to have her here with us today. And she has written on various Gond forts, including the Rani Kamlapati Mahal Bhopal and the Ginorgarh fort. Her dedication to preserving the cultural heritage of Central India culminated in the publication of a book, Art and Architecture of the Gond Dynasty of Central India. Very nice. Congratulations. We have Dr. Savita Raje with us. Welcome, welcome, Doctor. Welcome. I want to say something about her. So, Sikandar as usual has to interrupt. So let us make you a panelist. Come. We've had 2 absentees, so you can fill in. And we are at home. We are at home here. Points lene, I just want to mention 2 things. Please, sir. No. We'll give you a chance to speak. Look, I want to talk about her, not about You me. can speak about. And I have to note down pointers from your session. Isliye I'm not being No, the no, please. panelist. I'm humbly requesting you to join. Okay, so we have a complete panel now. These impromptu things can happen only at Pari Bazaar, and I can take this, liberty only with Rakshan. Okay, so back to our introductions. So we have Dr. Saxena, as I told you, and her wonderful work, even in collaboration with the Indira Gandhi National Center for Arts, and her heritage interpretation of Bhopal has established her as a respected authority in the field. Congratulations and thank you for being with us here. Then we have Dr. Prerna Kothari. Oh, sorry, architect Prerna Kothari. She very, very abruptly interrupted me. I have no words, to express for her. She's a dear friend, and Prerna is such a gentle person and such a wonderful person to work with. Really, Prerna, I'm so glad you agreed to come and be part of this panel. Thank you so much. Yeah. So Prerna, also a consulting architect based in Bhopal with a rich and diverse career spanning over 35 years. A graduate of the School of Architecture, Vallabh Vidyanagar, she has continually expanded her architectural vision through extensive travels across India, Europe, and the UK. These experiences have deepened our understanding of the dynamic interplay between material, structure, culture, space, and sustainability. We have a lot of architecture students here, so I'm sure they're understanding what I'm talking about. And
Architect Kothari has been a dedicated educator for over 2 decades, serving as a visiting faculty member and critic at renowned institutions such as Manet, SPA, Bhopal, and other esteemed colleges across India. So welcome, Architect Prerna Kothari. We have Dr. Savita Raje with us. She actually did not give me her introduction, but I had it saved somewhere in my WhatsApp long back. So I'm lucky that I have it with me right now. She's always been a great supporter in talking about Bhopal's heritage and culture, and we've invited her to various programs, and she's always very, very readily agreed to be part of us. Thank you so much, Savita ji, for being part of our program here. And as we speak, there's a big, big, big introduction to your illustrated career, so I'm going to really cut it a bit short. That she's an architect with specialization in landscape architecture. She has been engaged in teaching for the last 35 or maybe 37 years now at Manet, and this includes 4 years as professors at the School of Planning and Architecture. She was the UNESCO expert for heritage issues of Madhya Pradesh, and she is also the president of Living Heritage Alliance, a non-profit registered organization. She has worked extensively in the cities of Bhopal, Gwalior, and Maheshwar. I welcome you, Dr. Savita Raje. Thank you for being with us. Rakshan needs no introduction. Yeah, so I'll let you go. Rakshan is the president of Begums of Bhopal, and Pari Bazaar came as a thought once when we were at Golghar in the year 2017, and we were all astounded to see Golghar, that kitna अच्छा उसका इंटरप्रिटेशन है वहाँ, और रक्षान एंड सिकंदर दोनों थे, एंड सिकंदर ने बोला ये परी बाज़ार को रिवाइव करना चाहिए, और रक्षान वाज लेट्स डू इट, एंड आई थिंक दिस इज़ वी आर एट द 5th edition नाउ. कॉन्ग्रेचुलेशंस रक्षान, आपने बहुत अच्छा काम किया. एंड सिकंदर अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन टू द परी बाज़ार ऑडियंस. He's been the city's favorite historian, and you find him talking about stories of Bhopal. I don't know how many true, how many fictitious. So, but we love Sikandar's stories. So, coming now, deep diving into the questions. We are all here to discuss aaj ki we are in the midst of this topic, preserving the heritage and envisioning the future. How are we going to talk about balancing the heritage with the urban development happening around us? So I am not going to allow you to speak first, Sikandar. I'm going to give the first question to our Pooja ma'am here. What unique challenges do you face in studying and preserving sites in a historically rich but urbanized city like Bhopal? हेलो, सबसे पहले परी बाज़ार के संस्थापकों को पूरे भोपाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एक अच्छी शुरुआत की और आप इसको 5 सालों तक लेकर आए. ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे शहर को एक बहुत अच्छी सौगात भी. उसके लिए शुक्रिया. हेरिटेज किसी एक की तो नहीं होती, हम सबकी है. जो भी कुछ हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाए वो सब हेरिटेज है. लेकिन हमारे यहाँ विरासतों को सहेजने का अपना एक तरीका रहा. उसमें कुछ अच्छा भी था और कुछ हमसे छूट भी गया. हमने उनको तो शायद संभाल लिया जो बहुत बड़े स्तर पर भारत का इतिहास या किसी राज्य का इतिहास या स्थापत्य कला बताते थे. हमने ग्रेडिंग सिस्टम रखा, ए बी सी. ए और बी जो कैटेगरी के मॉन्यूमेंट्स थे वो तो फिर भी हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से संभाल लिए.
लेकिन इस बीच में हमसे वो छूट गया जो सिर्फ मेरा था। वो थे सी कैटेगरी के मॉन्यूमेंट्स या हमारी सिटीज़, ओल्ड सिटीज़ जैसे भोपाल। भोपाल का अपना एक इतिहास है, उसकी हर गली का एक किस्सा है, लेकिन कहीं वो हमसे छूटता जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हो सकता है कि हमारे भोपाल में आगरा का ताजमहल ना हो, लेकिन भोपाल का ताज हमारा अपना है, तो हमको उस ताज पर ध्यान देना है। तो ये भी ज़रूर है कि हर बार सरकार की तरफ मुंह नहीं देखना चाहिए, हमें कुछ अपने स्तर पर भी करना चाहिए। जो हमारी अपनी नगर की सरकार है उसको भी कुछ करना चाहिए और आप जैसा इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। कंजर्वेशन में भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। गौहर महल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे याद है कि हम 2001 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो हम इन जगहों पर अक्सर घूमा करते थे और एक तख्ती इस पर लटक गई थी अचानक से कि ये बिल्डिंग बहुत ख़राब कंडीशन में है, इसमें अंदर ना आए। और फिर उसके बाद अगले कुछ महीनों में हमने देखा कि तख्ती बदल गई और उस पर लिखा था कि ये बिल्डिंग बहुत क्षतिग्रस्त है और इसे गिराया जाना है और इसके अंदर बिल्कुल भी ना आए। तब शहर के बहुत सारे लोगों ने उस पर संज्ञान लिया, अखबारों में छपा और सरकार तक ये बात पहुंची। उस समय मैं इंटैक में जॉब करती थी। बात इतनी बढ़ गई कि हम लोग कोर्ट केस तक चले गए। इसका कोर्ट केस हुआ और वहाँ पर हमसे जज ने पूछा कि आप इस गौहर महल को बचाकर कर भी क्या लेंगे, इतनी ख़राब कंडीशन है। तो हमने बहुत सारी दलीलें दी और उसके बाद में उन्होंने पूछा कि अच्छा तो फिर इसमें खर्चा कितना आएगा। तो उस समय हमने इसके खर्चे का कहा था कि 1 करोड़ का खर्चा होगा कंजर्वेशन में, और दलील ये दी थी कि ये हमारे शहर की विरासत है, इसको बचाना ही पड़ेगा। हर शहर की एक आत्मा होती है जो उसकी विरासतों में होती है। अगर भोपाल से उसकी हेरिटेज को हटा दिया जाए तो भोपाल अपना परिचय ही खो देगा। तो उस आत्मा को तो बचाना ही पड़ेगा। इस दलील के साथ हम आगे बढ़े और सरकार, लंबे केस के बाद सरकार ये मान गई कि ठीक है, गौहर महल को कंजर्व किया जाए, आपको 1 करोड़ भी दे दिया जाए। और कंजर्वेशन हुआ और उसी समय ये भोपाल, ये जो गौहर महल में हाट लगता है, इसको प्लान किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो 1 साल का शुद्ध रेवेन्यू था, रेवेन्यू लाभ, शुद्ध लाभ जिसे कहते हैं, वो 3 करोड़ था। 3 करोड़ किसी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मैं आज तक ये दावा करती हूँ, सरकार भी इससे सहमत है, कि ये प्रोजेक्ट आज तक किसी भी तरीके से हानि में नहीं गया है। तो एक बिल्डिंग है, अगर हम उसको कंजर्व करते हैं, जो हमारे शहर का इतिहास बताती है, तो वो न केवल उसका इतिहास संजो कर रखती है, बल्कि कई सारे क्राफ्ट्समैन को उसमें काम देती है। क्राफ्ट्समैन सस्टेन करते हैं, उनके परिवार सस्टेन करते हैं, तो पूरा की पूरा एक समाज चलता है। अब ये गौहर महल सिर्फ अपने लिए नहीं कमाती, बल्कि ये तो कमाऊ पूत है, कई लोगों को कमा कर दे देती है। तो निश्चित रूप से किसी शहर की विरासत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनिशिएटिव हम सबको मिलकर लेना होगा। एब्सोल्युटली ट्रू पूजा, थैंक यू। सविता जी, अगला सवाल आपके लिए है। कैन हेरिटेज एंड प्रोग्रेस कोएग्जिस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ईच अदर? आपने एज you have done work on Taj Mahal, आपने बहुत हेरिटेज साइट्स को पढ़ा है, you have also taught students. What do you think? Very, very important question. Is heritage and progress, can they coexist? Before I speak, I must thank Rakshan for inviting me and Ravisha for conducting the program with such interesting questions. See, the heritage does not mean that it should be kept stored away or locked, या उसको सहेज के बंद करके रख दे। मैं हिंदी में बात करती हूँ जिससे ज़्यादा लोग समझ सकें। हेरिटेज एक प्रोग्रेस का ही हिस्सा है। जैसे हमारा सभी का एक एंटीसीडेंट्स होते हैं, हमारी एक हिस्ट्री होती है
और हमारा प्रेजेंट होता है और हमारा फ्यूचर होता है। हिस्ट्री से हम ड्रॉ करते हैं प्रेजेंट, और फ्यूचर के लिए वो हमें सिग्नल्स देता है, मैसेजेस देता है कि आपको फ्यूचर कैसे करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के आप ब्लंडर्स दोबारा ना करें, और उससे जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एक ट्रायल एंड एरर करके टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, उसको हम आगे तक कैसे बढ़ाएं। तो हिस्ट्री हेरिटेज हमें मैसेज देती है। मुझे फ्रांस यूनेस्को ने बुलाया था इंडियन मेयर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, टू शोकेस द एडवांटेजेस ऑफ हेरिटेज बेस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो हेरिटेज बेस्ड डेवलपमेंट से आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। इतने कंट्रीज़ हैं उनके पास हमसे 5% हेरिटेज है, पर वो उससे इतने अमीर हो गए हैं। हम तो हमारी भोपाल की हेरिटेज संभाल के ही सोने की चिड़िया बन जाएंगे, इतना ज़्यादा हमारे पास खजाना है। जब मैं चौक में काम कर रही थी, हमने एक बार बोला, अरे यहाँ तो खजाना है, तो एक लेडी इतनी इंटरेस्टेड होगी, हाँ हमने भी सुना है खजाना गड़ा हुआ है यहाँ। मैंने खजाना गड़ा हुआ नहीं, आपके घर ही खजाने हैं। और फिर हमने जिन जिन लोगों ने अपने घरों को संजो के रखा था, उनको अवार्ड दिलवाया उस टाइम के चीफ मिनिस्टर से। तो कई लोगों ने अपने घर के आगे तख्तियाँ लटका दी, हेरिटेज हाउस, अवार्डेड हाउस। तो एक लोगों को अपने पुराने घर के बारे में जो शर्मिंदगी थी कि ये टूटा फूटा घर है, पुराना घर है, एकदम सेंस ऑफ प्राइड आ गया। इसी को अगर हम सेंस ऑफ प्राइड को ही हम अगर और अच्छे से मैनेज करें, तो आप इतना अमीर बन जाएगा भोपाल की, वापस रक्षान जैसे असली बेगम की कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब फिर से बेगमों का शहर या राजाओं का शहर, जो भी है, मतलब मॉनेटरी फाइनेंशियली। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, भोपाल की जो प्लानिंग है, मैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ तो उसका एग्जांपल देना चाहूँगी। यहाँ पे नेचुरल ड्रेनेज इतने अच्छे से बनाया हुआ है कि बारिश हो तो सड़कें और गलियाँ और सुंदर साफ होके निकलती हैं। मॉडर्न शहर की तरह नहीं कि कीचड़ में हो जाएं, और सबसे मॉडर्न शहर तो ज़रा सी बारिश होती है तो वाटर लॉक्ड हो जाते हैं। भोपाल नहीं होता, बिल्कुल साफ रहते हैं, यहाँ के लोग बारिश को इंजॉय करते हैं। तो ये हमारी एक लर्निंग है हेरिटेज की प्लानिंग से, पुराने लोगों ने कैसे पानी की एक एक बूंद संजोई। शाहजहानाबाद देख लीजिए, ये तो इतना पैशनेट है शाहजहानाबाद के लिए कि वहाँ मतलब 10th क्लास से वो ऐसा पैशन लेके चला हुआ है कि क्या बताएं। शाहजहानाबाद में पूरा ईदगाह का कैचमेंट आता है, एक एक बूंद संजो के मोतिया तालाब में आती है, उससे जाके दूसरे 3 कास्केडिंग लेक्स हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो इरिगेशन में काम आता है बड़े बाग में, और जो बिल्कुल पानी किसी काम का नहीं रहता वो घोड़ा नक्कास नाले में बह जाता है। तो कितना अच्छे से प्लानिंग की हुई है, ये तो हमें मैसेज दे रहा है फ्यूचर के लिए। जब हम चौक में काम करते थे, नए घर के बिजली, उस टाइम पावर कट होते थे, तो जहाँ बिजली जाती थी, नए जो मॉडर्न घर बनाए बैठे वो त्राही त्राही करते थे, गर्मी गर्मी। और जो पुराने घर हैं वो सब आराम से बैठे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर थर्मली डिज़ाइन थे फॉर थर्मल कंफर्ट, और उनको लाइट चली जाए उनके डे लाइट फुल आती थी, उनके ठंडा रहता है घर, थी नहीं है अभी भी। जो लोग जानते हैं वो समझ सकते होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। डे लाइट पूरी आती है, आप किसी भी घर में चले जाएं, अमीर का घर, गरीब का घर, सब में डे लाइट आती है, ठंडे रहते हैं। बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री कम टेम्परेचर होता है अंदर का। तो ये तो हमारी सीखने की बात है। तो यही चीज़ हम मॉडर्न आर्किटेक्चर में कैसे लाएं, ये हेरिटेज को संजोने का फ्यूचरिस्टिक एडवांटेजेस हैं। थैंक यू। Very true. Prerna, I have a question for you. Do you think, adaptive reuse of historical buildings, can they help in the development of a city? For example, आप
Sadar Manzil dekho. Smart City has, you know, with public-private partnership, they have started a heritage hotel. And if you see examples of art galleries like Tate Modern in UK, if you see it was an old powerhouse which has been, you know, made into a world famous art gallery. So do you think that Bhopal mein itna potential hai that we have so many historical monuments, we can, you know, convert them and with public partner interventions get into such interesting spaces? Firstly, I'd like to thank you for this beautiful program. And why I think it's beautiful, it's because you're opening it to the public. Normally, these discussions happen in rooms within a selected set of people who are discussing, formulating policies and all. और पब्लिक को नहीं मालूम पड़ता. ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है. और जो आपका क्वेश्चन था रविशा, मैं हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में बात करूंगी. Certain things I'll not be able to say. So actually, with time, the functions of the buildings, and because society changes, the function changes. And those functions may not be relevant today. But the building is still relevant. इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोगों को thought provoking questions दें, if people are concerned, people are attached to the buildings, they'll find solutions of how to use the building. But if we segregate the building as something, as a monument, as something old which has to be maintained, and it is not part of the people, of the society which is living there, of the culture, then you'll never be able to find a function. And Gormel is the most beautiful example of that. जिस तरह से इसका function आया है यहाँ पे, तो सब buildings आप use कर पाओगे. There's no building you'll not be able to use again, but it requires a lot of understanding of what can be done in it. और उसके लिए public को involve करना पड़ेगा. जो लोग हैं जिनने उस बिल्डिंग का पुराना यूज़ देखा है, जिनने जनरेशन से उसके बारे में सुना है, जिनको उस बिल्डिंग से अटैचमेंट है. जब हम आउटसाइडर्स को लाते हैं जिनको बिल्डिंग से अटैचमेंट नहीं है, तो वो एक दूसरा फंक्शन डालते हैं. तो बिल्डिंग्स एंड दे शुड बी रीयूज्ड विथ व्हाटएवर सर्विसेज चेंज हो जाती हैं. Yeah, you see Sadar Manzil, it's such an old building, but they have this glass lift, you know, inside within the internal courtyard. So even like I'm talking a little technical, like Pi's Louvre at Paris. You see the Grand Palace and then there's this glass structure. So cannot modern and traditional come to a good balance with each other? It is totally possible. Yes. I don't think it's not impossible. And Berlin is a very good example of this. Absolutely. Berlin mein, and they have not tried to make the old new. They've retained the character of the old, they've retained the character of what they're making today, but they've blended it very well. And you see it in so many buildings, and this is not also necessary for big monuments. Even in residences like what Savita just talked of, those houses, after a few years, people will find it difficult to live in them. But we acknowledged it, they appreciated it. So right now they are proud of it. But sometimes someone will have to take a stand of how to conserve this. Correct. That is why this education is very important. Educating public is very important for this. आप education की बात कर रहे हैं. My next question goes to Sikandar. Sikandar, you conduct a lot of heritage tours all across Bhopal, and you have आपके पास all kinds of groups आते हैं, whether it is school children, whether it is foreigners. What do you think? Do the youngsters, the young generation, do they appreciate what they're seeing? Are they aware of their heritage? And what do you think that the education system in our country should go about when it's coming to talking about culture and heritage? Well, जब लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत मुतासिर होते हैं. They get really inspired. और कई लोगों को अपने roots का आइडिया नहीं है, क्योंकि बीच में एक जो गैप आता है 70s से लेकर के 90s तक का,
उस टाइम के जो बड़े हैं ना वो इतना मज़े में हैं कि उन लोगों ने वो चीज़ समझी नहीं। तो अगर बच्चे अटैच्ड हैं बुज़ुर्गों से और वो उनसे सुन रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को मालूम है और बहुत को नहीं। जब आप पढ़ाई के ज़रिए इंटरप्रिटेशन के ज़रिए उसको निकालते हो तो वो बहुत ज़रूरी है। और व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर, बहुत जो हमसे सबसे बड़ी गलती आज़ादी के बाद हुई वो ये हुई कि हमने कभी भी, वी वर नेवर प्राउड ऑफ आवर कल्चर इन अ सेंस कि जब तक कोई गोरा आके नहीं बोलता वी डोंट रिकॉग्नाइज इट। और दूसरा ये कि उसको हुकूमत ने, जो कि एक मेजर ड्राइविंग फोर्स थी, कभी भी लोगों की लाइवलीहुड से नहीं जोड़ा। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर कमाई से आप लगा देते लोगों को, जैसे राजस्थान में हुआ कि उनके पास कुछ नहीं था, और सवाई मान सिंह द सेकंड मार साहब जयपुर ने जो किया कि ही गेव अप हिज रेसिडेंस सो एज टू सेट अप प्रेसिडेंस एंड मेक इट इनटू अ होटल। सो रामबाग इज वेरी वेल नोन टुडे। उस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बात बताऊं कि अंबिकापुर वॉज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर छत्तीसगढ़ वेंट। उनके पास आज सबसे अच्छा ट्राइबल बेल्ट है जो मेटलर्जी और बाकी सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। स्टेट वॉज कॉल्ड सरगुजा, जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं। उनका बैंड वहाँ से मंगा लिया। अब पुराने लोगों की कुछ गलतियाँ हैं, जैसे सदर मंजिल का फव्वारा उखाड़ के वल्लभ भवन के गार्डन में लगाया और वहाँ से फिर वो कहाँ गया पता नहीं। ऐसे ही सरगुजा के बैंड को वहाँ से बुलवाया जो कि एक ट्राइबल बैंड था। उसका सामान पिछले 4 साल पहले तक PHQ में सड़ रहा था। अगर उसको बजाने वाले मौजूद हैं और वो चीज़ें हैं तो उनको यूज़ क्यों ना किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इंगेज कीजिए उन लोगों को जो ज़रूरी है। मैंने काम कहाँ से सीखा? अम्मा ने तो सिखाया नहीं। पूजा दीदी के साथ काम किया सदर मंजिल में। हमें सबसे पहले अपने लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने काम किया उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। इन्होंने भोपाल की गलियाँ चानी, खाक चानी, 332 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स फोटोग्राफ किए और लिस्ट किए। सविता मैम ने पूरा चौक वाला एरिया पूरा देखा और उसमें फ्रांसीसी एलिमेंट को ले आई जो इतने 70 सालों में नहीं हुआ था, और उन्होंने वो चीज़ एक्सप्लोर करी। मीरा मैम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पहला अकाउंट लिखा भोपाल के बिल्ट हेरिटेज पे। और मैं कहूँगा आदमी कुछ नहीं करते भोपाल में, इसलिए औरतों का पल्ला पकड़िए, वो काम करती हैं, उनको इकट्ठा करिए और उनके साथ चलिए। आदमी कुछ नहीं करते, हम सिर्फ बातें करने के लिए, बैठ के चाय पीने के लिए, अच्छा पान खाने के लिए, ख़त्म। तो यू हैव टू रिलेट इट, जैसे मैम ने कहा, रिलेटिविटी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भोपाल हमारा शहर है लेकिन उसके मुस्तकबिल का फैसला वो कर रहे हैं जिनका भोपाल से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई, चाहे आप हुकूमत में बैठे हो, चाहे आप अफसर हो, अपने घर में होगे, अपने दफ्तर में होगे, लेकिन बात सुनो आम लोगों की जिन्हें वाकई ज़रूरत है जिन चीज़ों की, कि सड़कों के गड्ढों के अलावा भी और भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें हैं और रोज़गार नहीं है। और वो तब आएगा कि जब अपनी चीज़ को हम अच्छा कहेंगे किसी गोरे के कहने से पहले, और वो बिकेगी और हम ही उसे प्रमोट करेंगे वर्ड ऑफ माउथ। चाहे वो परी बाजार हो, मेरी हेरिटेज वॉक्स हो, सविता मैम का काम हो, आपका काम हो, जब तक वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हम भोपाली अपने अपने बेस को टटोलें, क्योंकि एक दरख्त जिसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं उसका गिरना लाजमी है। ये मेरा मानना है। वेरी ट्रू सिकंदर। रक्षान, इस बार आपने थीम गोंद पे रखी है, तो कैन यू स्पीक अ लिटिल बट अबाउट इट? फिर मैं पूजा से बोलूँगी, उन्होंने गोंद पे बहुत काम किया है, तो पूजा और आगे बताएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट बिफोर शी स्टार्ट्स, कि पूजा दीदी ने गोंड ट्रेल पूरा एक्सप्लोर किया। हमने 3 महीने काम किया और वाहिद अकेली खातून है जिसने अपने दम पे रानी कमलापति का पूरा बेस जो है ना ढूंढ करके निकाला है। तो ये वो खातून है जिनका नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये नहीं, चश्मा लगा के दिखाइए, अब ये बुजुर्ग भी हो गई हैं। Thank you so much, Ravisha, for making me surprise element in this distinguished panel. तो मैं तो साफ ये कहना चाहूँगी कि गौंड आर्ट हमारा मध्य प्रदेश का फेमस आर्ट है, जितना मैं जानती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, और आज इंटरनेशनल लेवल पे है। थीम हमने बना दी और हमें पता था कि हम एक्सपर्ट्स को ले आएंगे, तो हम पहले दिन से जानना चाह रहे हैं, 19 तक हमें पता लग जाएगा कि गौंड आर्ट की क्या अहमियत है, बिकॉज वी हैव सो मैनी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन डिफरेंट पैनल्स ऑफ परी बाज़ार। जैसे आज हम इनविजन ऑफ फ्यूचर रविशा के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद कल भोपाल पे चर्चा है जिसमें उद्यान वाजपेयी जी, मीरा दास जी और मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, इस तरह के सारे लोग आ रहे हैं। तो
गौंड आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए थीम रख दी। और हम जानते थे कि ये हमारे मध्य प्रदेश का बहुत फेमस आर्ट है, और इस बार की जो हमारी थीम है उसको पद्मश्री अवॉर्डेड दुर्गाबाई ने बनाई है, उनका स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं थोड़ा सा थीम का आपको बता भी दूँ कि जो ये आप पेड़ देख रहे हैं ये गौहर महल है पूरा, जो उसने बनाया है दुर्गाबाई ने। और उसमें जो औरतें हैं वो सारी महिला कलाकार और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बैठी हुई हैं। और जो फ्रूट्स की डलियां हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं जो परी बाज़ार लगने से औरतों को मिलते हैं। और ये बड़े तालाब से दूर दूर से लोग आते हैं इस परी बाज़ार में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर गौंड थीम। और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जितनी भी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे जुड़ी हुई हैं उसमें हम जितने भी हमारे ट्राइबल आर्टिस्ट हैं या जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं उनको प्रमोट करें। वी टॉक अबाउट भोपालियत इन परी बाज़ार, वी सेलिब्रेट भोपालियत इन परी बाज़ार। और आप सब एक्सपर्ट्स को जोड़ने का हमारा मकसद ही यही है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल के बारे में जानें, हमारा जो रिच हेरिटेज और कल्चर है उसको पहचानें। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने भी VIPs आए सब इतने, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कितने साल पुराना ये महल है, कई तो पहली बार आए, इवन द मिनिस्टर्स। और उन्होंने पूछा कि ये मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतना अच्छा सारा ये है। तो मैंने ये कहा कि इस तरह के बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे भोपाल में जिनको एक जिसे कहना चाहिए कि उनको हम फिर से रिवैम्प करें और लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो बस ये एक हम लोगों की एक छोटी सी पहल है परी बाज़ार के थ्रू। इन डेप्थ अबाउट गोंड डायनेस्टी बताएंगी पूजा हमें। थैंक यू। जो क्षेत्र है यही गोंडवाना कहलाता है। हालांकि बहुत परिभाषा में फिट नहीं होता। गोंड जो है एक जनजाति है, ट्राइबल हैं जो वनों में रहते हैं। और जब इसको गोंडवाना नाम दिया गया तब उसका ये अर्थ कतई नहीं था कि गोंडों की लैंड है, पर नाम पड़ गया गोंडवाना। और ये भी इत्तेफाक रहा कि गोंडवानों का इतिहास बड़ा पुराना है। ये जनजाति आदिम काल से यहाँ रह रही है। आपको पता होगा कि भोपाल के पास में भीमबेटका है और भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। तो जब इसका डोजियर बन रहा था उसमें मैं भी थी। तो हम लोगों ने बेटका के आसपास जो क्षेत्र है जिसे बफर जोन कहते हैं वहाँ पर जो अध्ययन किया उसमें हमें ये पता चला कि भीमबेटका में जो पेंटिंग्स हैं जो हमारे जीवन को दर्शाती हैं, ऐसी आदिम काल की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हैं उससे मिलती जुलती पेंटिंग्स आज भी जो भीमबेटका के आसपास रहने वाली गोंड ट्राइब है वो आज भी बनाती है। इतने हजारों साल से कोई संस्कृति की निरंतरता होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही 3 कारणों में से एक था जिसकी वजह से भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। गोंड अपने आप को क्या कहते हैं या गोंड को कैसे ये गोंड नाम आया, इस पे बहुत सारे मत हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये खोंड शब्द से बना है। खोंड मतलब होती है पहाड़ी। लेकिन जब मैं गोंडों के बीच में काम कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि गोंड का क्या अर्थ होता है, तो उन्होंने कहा इसका अर्थ होता है मानुष, मनुष्य, सिंपल मनुष्य। हम खुद गोंड हैं। और गोंडों का ये जो क्षेत्र रहा इसमें खास उनका इतिहास जो रहा जिसमें हम रानी कमलापति को देख रहे हैं, उससे पहले भी बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो गोंडों द्वारा शासित था। 2nd सेंचुरी BC में भी हमको कुछ गोंड राज्य दिखाई देते हैं। 1st सेंचुरी AD में हमको जो बैतूल है आज का मध्य प्रदेश में, वहाँ पर गोंड शासन रहा, ऐसे कुछ सिक्के मिले हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे 15वीं 16वीं शताब्दी आती है तो गोंड जो कि वनवासी थे, वनों में रहने वाले थे, वो आकर प्रत्यक्ष रूप से शासन संभालते हैं। तो एक नाम आता है जबलपुर के गढ़ा मंडला के राजा संग्राम शाह का। और संग्राम शाह से जो है वो गोंड अपना सत्ता संभालते हैं। कलचुरियों के बाद में कलचुरी जो थे वो जबलपुर में शासन कर रहे थे और उसी समय में परमार यानी राजा भोज का शासन इस क्षेत्र में था। तो जब कलचुरियों का शासन खत्म हुआ उसके बाद
उनके यहाँ जो सेनापति हुआ करते थे, क्या था कि ये बहुत वन क्षेत्र था मध्य प्रदेश, तो जो वनों के आसपास के जितने भी किले हुआ करते थे या रास्ते हुए करते थे, वहाँ पर गढ़ बनाए जाते थे, बहुत सारे किले बनाए जाते थे। तो जब राजपूतों का शासन समाप्त हुआ, तो जो ये ट्राइबल्स थे, जो वहाँ पर सेनापति या किलेदार हुआ करते थे, उन्होंने ही सत्ता को संभाली और वो उन्हीं किलों पर से शासन करने लगे। तो ऐसे हमको दिखाई देने लगा 16वीं सदी तक आते आते कि गोंडों का शासन स्थापित हो गया। गढ़ा मंडला में एक बड़ा राजा आया, संग्राम शाह, जिसको 52 गढ़ा कहा जाता है। 52 गढ़ा यानी जिसके पास 52 फोर्ट्स हों। 52 फोर्ट्स होना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि रानी दुर्गावती आती है उन्हीं के वंश में, और जिन्होंने अकबर का जो सेनापति था आसफ खां, उसके आक्रमण के बाद आत्मोत्सर्ग किया था। तो जब ये लड़ाई हुई थी, नरई की लड़ाई, उसके बाद में अकबर को इन गोंड राज्य को 10 फोर्ट्स देने पड़े थे। उसमें से एक फोर्ट भोपाल भी था, हमारा कोई किला कोना, जिसे आप रानी कमलापति के महल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो 10 फोर्ट्स गए थे, ये कुछ ही समय में वापस गोंडों को दे दिए गए मुगलों द्वारा। वो इसलिए दिए गए कि ये वन क्षेत्र था, बहुत जंगली जानवर हुआ करते थे और इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो जब ये 10 फोर्ट वापस किए गए, तो गढ़ा मंडला जबलपुर को वापस ना करके जो यहाँ के किलेदार थे उनको वापस किए गए। इसी कारण से यहाँ पर एक नई डायनेस्टी दिखाई दी, और हम देखते हैं कि उसी डायनेस्टी में हमको रानी कमलापति नजर आती हैं, जिनके बारे में कहावत है कि ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, और रानी तो कमलापति, बाकी सब गधैया। तो उनका बनाया हुआ यहाँ पर महल है। एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था भोपाल में, जिसको हम किला कोना या पुराना किला के नाम से जानते हैं। अब तो बस किले का जो महल है उसका एक बाथरूम वाला पार्ट बाकी है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिसको संरक्षित किया है। जब भोपाल स्वतंत्रता के बाद में भोपाल का विकास होने लगा, तो बहुत फोर्ट का बहुत सारा भाग जो है वो इसलिए डिमोलिश कर दिया गया कि आगे जाकर रोड हमको चौड़ी मिलेगी, और हमने उस हेरिटेज को ख़त्म कर दिया। अगर आज आप पार्क में कमलापति का महल देखेंगे, तो करीब 5 मंजिलें अभी दिखाई देती हैं हमको छोटे तालाब की तरफ से। और अगर हम भोपालियों से सुने तो वो कहेंगे कि अभी तो 7 मंजिल और अंदर है। तो हमारी तो आदत है थोड़ा सा फेंक कर बोलते हैं। पर हाँ, ये निश्चित है कि जब मैं उसका कंजर्वेशन कर रही थी, तो मैं उस तरफ से नाव से गई थी, तो मैंने देखा था कि 1 मंजिल तो मुझे दिख रही थी, उसमें एक मोटी सी चेन भी बंधी हुई थी। और लेकिन हाँ, कितनी मंजिलें और हैं ये नीचे नहीं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि इसका जो एंट्रेंस रहा होगा कमलापति महल का, वो छोटे तालाब की तरफ रहा होगा। एक और किस्सा आपको सुनाऊंगी कि जब हम छोटे थे तो हम कमला पार्क में खेलने के लिए जाया करते थे। तो हम किस्से तो भोपाली सुनाते सिकंदर हमारे साथ बैठे हैं, किस्सों के क्या कहते हैं, नवाब हैं। तो हम किस्सा सुनते थे कि जब रानी कमलापति ने आत्मोत्सर्ग किया, उसके बाद में हर दिवाली की रात, क्योंकि दिवाली की रात जो है काली रात होती है, अमावस्या की रात होती है, तो हर दिवाली की रात छोटे तालाब के अंदर से एक हाथ निकलता है, बहुत बड़ा हाथ, और वो बहुत खूबसूरत सजा हुआ, तो उसमें मेहंदी लगी होती है, उसमें अंगूठियाँ, जैसे दुल्हन का होता है, चूड़ियाँ उड़ियाँ पहने हुए, ऐसे हाथ निकलता है बहुत बड़ा। तो मैं तो बहुत डरती थी बचपन में उसको सुनने के बाद। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके किसी से पूछ लिया, तो फिर क्या हुआ, तो बोले कि एक अंग्रेज ने गोली मार दी तो निकलना बंद हो गया। तो ऐसे किस्से कहानियों के साथ में भोपाल खूब सारा बसा हुआ है। हम जो गौहर महल में बैठे हैं, इसके पीछे एक शीतला माता का मंदिर है। वो शीतला माता का मंदिर भी गोंडकालीन है। इस गौहर महल का जो आर्किटेक्चर है वो भी कहीं गोंड आर्किटेक्चर से बहुत प्रभावित दिखाई देता है, खासकर नीचे का हिस्सा जो है, जो कॉलम्स हैं। इसके अलावा आप जो कुछ चौक बाज़ार में श्री कृष्ण के मंदिर देखते हैं, कुछ इसके पीछे भी हैं गौहर महल के, और इस चौक बाज़ार में कुछ मंदिर दिखते हैं जो स्पेशली कृष्ण के हैं, क्योंकि जब गोंडों का शासन था उस समय वल्लभाचार्य जी मथुरा से इस तरफ निकले थे दक्षिण की तरफ जाने के लिए।
तो उनके साथ कई संत निकले थे। तो वैष्णव संप्रदाय के कई संत यहाँ से निकलने के कारण ये जो श्री जी का मंदिर और कई सारे मंदिर हमको दिख रहे हैं, स्पेशली बल्लभ संप्रदाय के, वो उसी समय बने हुए हैं। तो ये एक मुझे लैंडस्केप दिखाई देता है जो गोंड काल का है। Very interesting, Pooja. Very nice to know these little nuances. Savita ji, I would like to know which one actionable step can you take to make a tangible difference in the legacy of Bhopal? Tangible difference? The difference in the legacy of Bhopal. One actionable step that we should take. Like the one actionable step that one should take for the legacy of Bhopal is to, I would say, we just cannot, when we talk of Bhopal, we cannot just talk of tangible. It also covers intangible. So I would say the best thing about Bhopal is to preserve its Bhopaliyat, its culture, the way of living, where the winter is called Gulabi Sardi, where every spaces, open spaces have been designed to enjoy the pleasant climate that is generated here because of the water bodies and the designed airflows. यहाँ पे हवा का जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे कहाँ से बहेगी, हमने इसकी साइंटिफिक मेजरमेंट करी हुई है कि कैसे हवा ठंडी हो जाती है, गलियों में स्क्वायर्स में कैसे उनको छोटे पर्चे से पास कराते हैं, जो कि थॉटफुली की हुई चीज़ है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी लेगेसी है भोपाल की, जिसको कंटिन्यू करना चाहिए। तीसरा, जैसा पूजा जी बोल रही थी कि गोंड आर्ट के बारे में, गोंड आर्ट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि, या गोंड कल्चर के बारे में, कि वो नेचर, जैसे उन्होंने बोला गोंड मतलब मानुष, पर गोंड जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें नेचर और मैन का एक बहुत ही अच्छा को एग्जिस्टेंस, डिज़ाइन को एग्जिस्टेंस है। वो लोग, आप उनकी पेंटिंग्स देखें, बिना नेचर के उनका काम नहीं चलता। एक बहुत ही हेल्दी को एग्जिस्टेंस है जो कि हर शहर में, गोंड के शहर में, फिर बेगमों के शहर में जो उन्होंने बसाया, आप देखेंगे उसका एक बहुत कंटिन्यूएशन है। और मॉडर्न भोपाल में भी आप मास्टर प्लान देख लें 2005 तक का, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है नेचर बेस्ड डेवलपमेंट का। तो इसको, क्योंकि भोपाल हेलो 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 कि इसको साइंटिफिकली प्रिजर्व करना पड़ेगा, जिससे वो आगे तक, फ्यूचर तक जाए, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। थैंक यू। My last question goes to Prerna. Prerna, आपको क्या लगता है, how can women participate in making Bhopal, like you talk about Begums of Bhopal, you talk about the city, like Sikandar said, it's the women who run Bhopal. How do you think that we can increase women participation in Bhopal to preserve its culture and also, get them involved in the development of the city? Maybe I have a very different view on this. I apologize if people don't agree to it right in the beginning. But the way to हेलो जी हेलो 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 So what is very essential, what is required is for parents, it's not only the ladies, but it's for parents to make their children aware of what Bhopal is. They preserve their family, they preserve their house. But if they get attached to the city,
It should not be Bhopal, it should be my Bhopal. भोपाल में कौन से पेड़ हैं, कौन सी पक्षी आते हैं, क्या है, कौन, हर चीज़ से उनका एक अटैचमेंट होना चाहिए. जब वो अटैचमेंट हो जाएगा तो आपको प्रिजर्व कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही प्रिजर्व होता जाएगा. पीपल विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स दे आर अटैच्ड टू, जिसकी उनको वैल्यू है. अभी क्या होता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो लोगों से डिटैच्ड है, लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं. So I think it is at the school level and at the house level that conservation begins. If conservation is done at the school level, if the teachers take the children out, बच्चों को घुमाते हैं, करते हैं, लेक पे बोटिंग पे ले जाएंगे, बच्चा बड़ा होगा वो लेक खराब होने नहीं देगा. He'll do every effort to see that the lake doesn't get polluted. But we take the children to museums, which is a slightly sad part. There's living heritage, we are detaching them from the living heritage and we are taking them to conserved heritage. That's what I would think is, conservation will happen on its own because if things are not maintained, they get old. But if someone is attached to it, वो regularly maintain होएगा ही, लोग खराब नहीं करेंगे. अगर लोगों का प्यार शहर से हो गया तो शहर ब्लूम करेगा, ग्रो करेगा और कोई और भी शहर को नहीं खराब करता है. Very true. That's what I thank you. I close this program with a feeling of attachment towards Bhopal. We learned how attachment is very important. We learned about how history and understanding the culture and going in depth and not just dismissing it as just another thing is important, and how you can not only preserve it but even make it a sustainable practice is very important, and that we've learned from Pooja. And Savita ji always talks about how nature coexists and we have to coexist with nature and how important it is. Whenever we come to Bhopal, the first thing everyone is charmed is, oh, what a beautiful green city. And that is something that stays with us and we are proud of it. In one sentence, not more, or 2 words, just tell me your feeling for Bhopal. And we close this with that. देखो, कोई चीज़ सरकार अम्मा के बगैर ख़त्म नहीं होती. तो नवाब सुल्तान जहाँ बेगम, मेरी सरकार अम्मा कहती थी कि अगर एक नस्ल को आपको काबिल बनाना है तो उनकी माओं को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि ये आने वाले नस्लों की माएँ हैं और ये अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे और उनमें तहजीब आएगी. और भोपाल वो शहर है जहाँ तालीम से ज़्यादा तहजीब पे ध्यान दिया जाता था. सो द ओनली थिंग इज़ कि भोपाल की अम्माओं ने कहानी सुनाना बंद कर दिया है. प्लीज़ बैठ कर के जो गुफ्तगू करते हैं बाकी सारी बकवास चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा भोपालियत भी करिए. और बड़ा तालाब हमारे जैसे लाइफ का हिस्सा है वैसी बाकी चीज़ को बना दें. और मैं मैम से बिल्कुल अग्री करूँगा कि इनटेंजिबल को रिवाइव करो, टेंजिबल अपने आप रिवाइव हो जाता है. Prerna, your feeling for Bhopal? You can be honest. That's what I was going to say. Bhopal is a blessing of God, but men have not taken care of it. We have not respected what we have, and if it starts happening, it will again become a heaven. सिर्फ 2 शब्दों में, मेरा भोपाल. भोपाल जिंदाबाद, भोपालियत जिंदाबाद. हाँ, बहुत खूब. सविता मैम ने इससे ही पूरी महफिल लूट ली. एक बार जोरदार तालियां इस पूरे सेशन के लिए.